नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढली। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय संकट का सामना कर रही सरकार के खिलाफ राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ 11 मई से जन आंदोलन मोर्चा की शुरुआत करने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने वित्तीय संकट से घिरी राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने का ऐलान कर दिया है। वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर बीजेपी 11 मई से आईजी पार्क में जन आंदोलन मोर्चा की शुरुआत करने वाली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कुछ वक्त पहले प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा को एक मेमोरेंडम सौंपा था, जिसमें वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। इसके लिए बीजेपी ने उन्हें 7 दिनों का वक्त भी दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर बीजेपी ने यह आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। जन आंदोलन मोर्चे के चेयरमैन तामे फासांग ने बताया कि बीजेपी हर जिले में फेस वाइज आंदोलन का आयोजन करेगी। राज्य सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट की वजह से सरकारी कर्मचारियों से लेकर छात्र तक सभी परेशान हैं, लेकिन राज्य की सरकार को इनके आंसुओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नाबम तुकी के इस्तीफे की मांग भी की है। 27th of last month, gracefully we had been delegation under the banner of leader of opposition and our party president to His Excellency Governor of Arunachal Pradesh. There we submitted a memorandum. That day, the same day, we had a press conference over here. I was part of that conference that day. Although I was not here, but I was a part of the conference that day. Same copy has been widely circulated to you all respected press papers. So in the last line it was clearly depicted, it was clearly mentioned, I mean to say, 7 days ultimatum we have given to His Excellency Governor of Arunachal Pradesh. So after 27, we believe 4 तारीख 4th was the last day of ultimatum, and today is the 6th. Since we are the biggest party in record in world in globally today, BJP party, we took lots of patience. Now what I wanted to tell you friends, on one day back, 26th of last month, our president Sri Tai Tagaji, special consent taken from national president, who is none other than Amit Shah ji, who visited recently this our state. You might all are aware of that. This committee is being constituted by Tai Tagaji. So it was on 26th. What really I wanted to brief, what I wanted to disclose you in front today, like right from the day one, I along with all these members of the committee, we started working on that. We displayed a lot of banners on the way, what is called on the roadside and on the road, and we distributed many pamphlets also. And then some of our workers, they pasted loads of posters. But what sharam ka baat hai, I have to tell you, these guys, state government, if they are guts enough, if they are capable enough to answer our demands, they are in a ruling party, we most welcome them on road. Why these guys, why this ruling government, they are detesting, they are removing our posters, and why they are detesting our what is called banners. So ultimately, we, the Jan Andolan committee, the main gist, the main prime point of today's press conference, like, sorry, not November, coming 11th May 2015. Now no more poster, no more request. Since our Excellency also less in acting, not in action now we'll go to our people.
Jan Andolan has firmly decided will go to our people. So on 11th of this month, हमने decide किया we have a mass public rally at Indira Gandhi Park. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने ईटानगर में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के कार्यालय सह रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सीएम ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। अरुणाचल प्रदेश विकास की राह में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की ओर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ईटानगर में नाबार्ड का कार्यालय सह रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला की मौजूदगी में कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए नाबम तुकी ने राजधानी में नाबार्ड के कार्यालय की स्थापना को प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। राज्य में अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर नाबार्ड निवेश कर चुका है और नाबार्ड अकेला ऐसा संस्थान है जिसने सफलतापूर्वक राज्य में कई गतिविधियों को पूरा किया है। इस दौरान नाबम तुकी ने नाबार्ड के अध्यक्ष से आग्रह किया कि वो प्रदेश के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं में निवेश करें। बहुत साल के बाद पहला CMD नाबार्ड अरुणाचल में अब आ गया। हम लोग बहुत खुश है और अरुणाचल सरकार का ओर से और तमाम अरुणाचल का वासियों की ओर से आपको मैं अधिक स्वागत करता हूँ। और आपने मेहनत किया और अरुणाचल के लिए बहुत ये काम किया है। आज नाबार्ड अरुणाचल में कम से कम 1000 से अधिक करोड़ पैसा इन्वेस्ट किया है, विशेष करके रोड एंड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और अनेक इलेक्ट्रिकल एंड अदर वाटर सप्लाईज में वेरियस प्रोजेक्ट्स में आपने बहुत काम किया। भारत सरकार में से जितना भी जो डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सबसे अच्छा काम, विजिबल काम और पब्लिक दिल जीतने वाला जो इंस्टीट्यूशंस है तो नाबार्ड का अलावा आज तक कोई आया नहीं है अरुणाचल। तो हम लोगों ने कहा कि अरुणाचल जोग्राफिकल डिसेबिलिटीज है, यहाँ वेदर का कंडीशन अलग अलग है और 3 हिस्सा में यहाँ का जोग्राफिकल एरिया है, जो लो बेल्ट है, मिडिल बेल्ट है, अपर बेल्ट है। उसका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, डिमांड अलग अलग है, जरूरतें अलग अलग है। प्रोजेक्ट भी इस हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा। जो लोअर बेल्ट में अलग टाइप का प्रोजेक्ट होगा, मिडिल बेल्ट में जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का अलग टाइप से प्रोजेक्ट होगा, जो हाई माउंटेन हिल्स अपर रिज एरिया में स्नो केव्स एरिया में वहाँ अलग प्रोजेक्ट, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या सोशल एक्टिविटीज हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्विसेज हो, वहाँ अलग अलग चीज़ें हम लोग को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा नीड बेस के अनुसार पर आप मदद करना चाहिए ताकि वो हकीकत में होगा, उसका कामयाबी होगा, उसका अंत में जाके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेन उद्देश्य है हमारा जो है उन लोगों को, गरीब लोगों को सेवा करना है और ऐसा इलाका है उन जगह में हमको कुछ एक्टिविटीज पहुंचाना है। हम लोग ऐसा भी विंडो क्रिएट कर दीजिए ताकि जो गवर्नमेंट का अलावा भी कोई भी एक्टिविटीज है उसको हमको फंडिंग करें या लोन में दे दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो क्रिटिकल गेप्स इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, इस तरह प्रोजेक्ट्स हम आपका दौरा से हम काम कर सकते हैं। सरकार का तरफ से जो भी पॉसिबल सपोर्ट जो करेगा, जो दे सकता है हम लोग पूरा देगा। उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे मुख्य सचिव रमेश नेगी ने भी नाबार्ड के कार्यों की सराहना करते हुए प्रदेश के विकास के लिए उनके योगदान को जारी रखने का अनुरोध किया। मेरा अपना पिछले लगभग 3 साल का, पौने 3 साल का अनुभव ये है कि नाबार्ड के अधिकारी जब भी आए हैं वो एक नई इनोवेशन के साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी लीडरशिप, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। क्योंकि हम लोग कई बार उतना बड़ा जो इनोवेशन है वो नहीं सोच पाते हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जो इनोवेशन हैं वो इन्होंने लाए हैं। मैं अंत में एक बार दोबारा उनका धन्यवाद करता हूं और ये चाहता हूं कि भविष्य में ये डेफिनेटली हमारे ऊपर इसी तरह की
नज़र रखेंगे और हमारे जो सिस्टम्स हैं उसको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेंगे, मॉनिटरिंग में मदद करेंगे। और ख़ास करके जो अपेक्स बैंक है, मैंने सुबह ही बात की सी साहब से कि हमें कोई कंसल्टेंट बताएं या इस तरह का सिस्टम इम्प्रूवमेंट अपेक्स बैंक को करना है। आपके साथ हमारा रिश्ता लंबा है और जनता की भलाई के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। तिरप पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरकेएम स्कूल में हुई लूट की वारदात को सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही सफलता पर राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने पुलिस की सराहना करते हुए उन्हें रियल हीरो बताया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ये 3 चेहरे वो शातिर लुटेरे हैं जिन्होंने पुलिस महकमे की नींद उड़ा रखी है। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका ये गिरोह पिछले काफी वक्त से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था, लेकिन तिरप पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस गिरोह को पकड़ ही लिया। आपको नरोत्तम नगर स्थित आरकेएम स्कूल में हुई लूट की वारदात तो जरूर याद होगी। इस शातिर लुटेरे के गिरोह ने ही उस वारदात को अंजाम दिया था। कुछ वक्त पहले की ये बात है जब रात को ये तीनों बदमाश स्कूल में दाखिल हुए थे और स्कूल के सेक्रेटरी महाराज जी के कमरे में 40,000 नगद, आपातानी तलवार, मोबाइल समेत कई चीजें उड़ा ले गए थे। इतना ही नहीं, इस गिरोह ने खुद को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कैडर का उग्रवादी बताकर महाराज जी से 10 लाख की मांग भी की थी और इसके लिए उन्हें 2 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रदेश के डीआईजी एस नित्यानंदम ने बताया है कि इस मामले में 26 मार्च को देओमाली थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन की अध्यक्षता लोंगजिंग के एसपी धीरज कुमार कर रहे थे। 1 महीने से ज्यादा चले ऑपरेशन के बाद पुलिस विभाग ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने जानकारी दी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में वांगची वांगपन NSCN कैडर का उग्रवादी रह चुका है। नित्यानंदम ने बताया कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए पुलिस विभाग अब इंटेलिजेंस और सेना की मदद लेगा। And we will take all precaution. For example, we will not, certain things I will not reveal. But one thing is damn sure that we will share intelligence, timely intelligence, and then we will going to erect checkposts. And the SPs, I requested them to identify vulnerable places, and we will deploy forces, combined forces, not individually operated, but whatever the Assam Rifle is there, CRPF is there, then Army is there. We will do our best with the full team spirit and timely sharing intelligence. वहीं इस मामले में राज्य के गृह मंत्री ने केस सुलझाने वाले सभी पुलिसकर्मियों को सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। तांगा ब्यालिंग ने पुलिस की सराहना करते हुए उन्हें प्रदेश के रियल हीरो बताया और कहा कि राज्य के पुलिस ज्यादा संसाधन न होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस से बेहतर काम कर रही है। मेरा समय में पुलिस का कोई भी लैप्स नहीं है। जहाँ भी हो अच्छा काम कर रहा है, चाहे कैपिटल में भी हो, डिस्ट्रिक्ट में भी हो। बोलने वाला बोल रहा है कि पुलिस बदमाश आई, ये आए हो वो आए। मेरा नज़र में बदमाश देखा ही नहीं दे रहा है। ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, टीएम और पुलिस का जो पर्सनल बहुत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारे पास इतना अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर भी दिल्ली पुलिस से भी हम लोग ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है जैसे हमको लगा है। इसलिए डीजी साहब का गाइडेंस में, हमारा आईजीपी का गाइडेंस में, सीनियर ऑफिसर का गाइडेंस में ये काम कर रहा है। इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक पुलिस का एक ये होना चाहिए, पुलिस हीरो नहीं होने से कौन हीरो होगा। इस दौरान ब्यालिंग ने बंद बुलाने वाली संस्थाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सिविल सोसाइटी भी बंद को कतई स्वीकार नहीं करेगी। फाइट हम लोग कर रहा है, तो मीडिया लोग से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को भी आप लोग भी जो एसोसिएशन लोग, ये लोग अच्छा काम नहीं करने वाला को अच्छा काम नहीं किया बोलना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बान कॉल सबसे खराब चीज़ है,
डेमोक्रेसी है सबका, सबको राइट है, आपको भी राइट मिलेगा, आपको राइट में आप काम करो, लेकिन आपको डेमोक्रेसी का राइट को लेकर दूसरा डेमोक्रेसी राइट को कत्ल नहीं करना है। किसी का फ्रीडम मूवमेंट को, किसी का फ्रीडम बिजनेस को, इसको कत्ल जो करता है वो ही इलीगल है। आप बोल सकता है, जैसे अंगर स्त्री कर सकता है, वो आपका मर्जी है, धरना कर सकता है, आपका मर्जी है, आपका पॉइंट जेन्युइन है ना नहीं है विचार करेगा। बिजनेस कम्युनिटी को पूरा कटअप करके रख देता है, दुकान क्लोज करके, कितना लॉस होता होगा बेचारा। ये दिल्ली मार्केट वाला लोग, रास्ता में बैठ के सब्जी बिक्री करने वाला लोग, मछली बिक्री करने वाला लोग, मीट बिक्री करने वाला लोग, इन लोगों का कितना नुकसान होता होगा। सब्जी सूख जाएगा, मीट सूख जाएगा, सार जाएगा, मछली सार जाएगा। ये चीज़ को सिविल सोसाइटी के तरफ से भी सब लोग ठीक नहीं है बोलना बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख फेस्ट तवांग महोत्सव रविवार को संपन्न हो गया। फेस्ट के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नाबम तुकी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। 3 दिनों तक चले महोत्सव में राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की तमाम हस्तियों ने शिरकत की थी। प्रदेश के पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक रंगों की चादर चढ़ाकर रविवार को तवांग महोत्सव का समापन कर दिया गया। समापन समारोह में कई समुदायों की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोक नृत्यों की सुंदर प्रस्तुति पेश की। प्रदेश के कैलेंडर फेस्ट तवांग महोत्सव का सुरूर कुछ इस कदर चढ़ा कि मुख्यमंत्री नाबम तुकी और उनके मंत्री भी खुद को इस फेस्ट का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाए। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सीएम नाबम तुकी ने तवांग जिले की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सभी तवांग वासियों की सराहना की और उनसे अपील भी की कि वो सरकार के साथ मिलकर विकासात्मक गतिविधियों में उनका सहयोग करें। तवांग महोत्सव का प्रदेश वासियों को काफी वक्त से इंतजार रहता है, इसलिए 1 मई से शुरू हुए महोत्सव में पहले दिन से ही लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। विभिन्न समुदायों के लोग अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर महोत्सव में शामिल हुए। एसएसबी ग्राउंड में प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने महोत्सव का शुभारंभ किया था। फेस्ट को संबोधित करते हुए उन्होंने तवांग की खूबसूरती का जिक्र किया और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए महोत्सव को काफी अहम बताते हुए प्रदेश की सुरक्षा पर भी बल दिया। अरुणाचल प्रदेश में 2 खास मुद्दे हैं। There are 2 main issues in Arunachal Pradesh. One is security of the state. तवांग में जो वॉर मेमोरियल है वो इट bears testimony to the fact कि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ भी शहादत देने को तैयार है। और ये हमें सबको ये याद दिलाता है कि तवांग और अरुणाचल और देश के लिए ये सिर्फ फौजी नहीं बल्कि हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश का हर नागरिक उसके लिए सबसे आगे रहेगा और तैयार रहेगा। डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और उसमें टूरिज्म प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड देयरफॉर आई थिंक this festival has tremendous significance because tourism not only brings in economy नहीं, tourism के साथ हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो भारत की, इंडिया की पहचान है, वो टूरिज्म के थ्रू ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। आई थिंक ये 2 चीज़ें हमें अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखना है, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, दोनों एक साथ जाएंगे तभी हम इस इलाके को, इस प्रदेश को मजबूत बना सकेंगे। फेस्ट के दूसरे दिन भी तवांग के ओल्ड मार्केट में कई कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए गए। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की उपस्थिति ने भी सभी को फेस्ट से जोड़े रखा। वहीं फेस्ट में शामिल हुए राज्य के पर्यटन मंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने में तवांग महोत्सव का अहम योगदान है। तवांग फेस्टिवल जो है हमारा स्टेट का एक कैलेंडर ऑफ इवेंट है टू बेसिकली टू अट्रैक्ट टूरिस्ट इन नॉट ओनली इन तवांग डिस्ट्रिक्ट बट फॉर एंटायर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ताकि हमारा इतना दूर जो हमारा यहाँ सीमावर्ती जो ज़िला है तवांग क्षेत्र,
ये इतना सुंदर है यहाँ में, तो वो यहाँ पे एक टूरिज़्म ये जगह को प्रमोट करने के लिए, यहाँ को लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए तवांग फेस्टिवल यहाँ में मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये तवांग फेस्टिवल अभी इस साल हम लोगों का 3rd है तवांग फेस्टिवल हम लोग मनाए जा रहे हैं, तो इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। टूरिस्ट का तादाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इन ए वे दिस इज टू बूस्ट टूरिज्म नॉट ओनली फॉर तवांग बट एंटायर अरुणाचल प्रदेश। इस दौरान वीआईपी कल्चर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के त्योहारों में आम जनता की पहुंच वीआईपी से ज्यादा है। जैसे कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पे पधार रहे हैं। पहले खबर आया डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि मौसम पैक्ट हो गया, यहाँ नहीं आ रहे हैं। इनिशियली उनके लिए प्रोग्राम वहाँ पे ग्राउंड में ऑर्गेनाइज था सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक। तो द शो मस्ट गो ऑन। अभी हम लोग का ये जो है ये 2nd शो है। तो तवांग फेस्टिवल जो है इट्स नॉट मीन फॉर वीआईपीज। वीआईपी आता है लोगों के लिए आता है। लोग यहाँ में वीआईपी के लिए नहीं बैठ रहे, लेकिन वीआईपी आता है लोगों के लिए। द शो मस्ट कंटिन्यू। इसलिए आप देख रहे होगा कि ये मार्केट एरिया है। हमारे रक्षा मंत्री यहाँ पधार रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम जो उसका मिस हो गया क्योंकि मौसम पैक होने का बावजूद, अभी वो 2nd प्रोग्राम में आ रहा है, वो भी मार्केट में आके ज्वाइन कर रहा है। बॉटम लाइन वही है कि तवांग फेस्टिवल इज़ नॉट मीन फॉर वीआईपीज। वीआईपी जो होता है लोगों के लिए होता है। तो वीआईपी जो भी हमें पदार्थ है वो भी एक आम आदमी की तरह लोगों में शामिल होकर इस फेस्टिवल में भाग लेता है। 1 मई से 3 मई तक चले महोत्सव में लोगों ने काफी लुत्फ उठाया। संस्कृति से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक सभी में विविधता में एकता के दर्शन हुए। बता दें कि ये फेस्ट हर साल अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, लेकिन इस साल 16 से 26 नवंबर के बीच तिब्बतियन गुरु दलाई लामा प्रदेश की यात्रा पर आने वाले हैं, जिसके कारण त्योहार मई में आयोजित किया गया है। मणिपुर में ग्वालतबी इलाके के लोगों ने सीएम के आश्वासन और थावाई के ग्रामीणों द्वारा माफी मांगने के बाद इम्फाल उखरूल रोड बंद पर रोक लगाने का फैसला किया है। आगजनी और चक्का जाम की ये तस्वीरें इम्फाल उखरूल रोड की हैं, जिसे ग्वालतबी इलाके के सैकड़ों नाराज लोगों ने बंद किया हुआ था। लेकिन अब ग्वालतबी के लोगों का गुस्सा शांत हो गया है। थावाई के ग्रामीणों द्वारा माफी मांगने और सीएम के आश्वासन के बाद ग्वालतबी के पीड़ित परिवारों ने इम्फाल उखरूल रोड पर बुलाए बंद को खत्म करने का मन बना लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ऑल ट्राइबल चीफ फोरम ने एक बंद बुलाया था, जिसे थावाई के ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त था। उस दौरान थावाई के ग्रामीणों ने बंद को सफल बनाने के लिए हिंसक रुख अख्तियार किया, जिसमें ग्वालतबी इलाके के लोगों के घर और प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचा था। इस घटना के बाद गुस्साए ग्वालतबी इलाके के हजारों लोग इम्फाल उखरूल रोड पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी करते हुए सड़क पर चक्का जाम लगा दिया, जिसके चलते यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह ठप हो गई। इनकी मांग थी कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाए। बंद के कारण हालात इतने खराब हो गए कि सीएम को खुद इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री ओकरा मिबोबी सिंह ने ग्वालतबी इलाके के लोगों को आश्वासन दिया है कि 15 मई के बाद सभी पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। थावाई के ग्रामीणों ने भी घटना के लिए माफी मांगी है, जिसके बाद अब ग्वालतबी के लोगों ने बंद पर रोक लगाने का फैसला किया है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।